Hello students, how are you? In our last class we started cell organelles. We defined the cell organelles, that means the membrane bound very fine structures. The membrane bound very fine structures which perform particular function for the cell and make it alive are called cell organelles. membrane bound वो structures जो कि फाइन स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और सेल को अलाइव बनाए रखती हैं, यानी कि उसको फंक्शनली एक्टिव बनाए रखती हैं, दैट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स. ओके, नाउ in our today's class let us start to discuss about one by one. The first one is endoplasmic reticulum. First one is endoplasmic reticulum. If we consider its discovery, then it was discovered by Porter and Thomson's in 1945. It was discovered by Porter and Thomson's in 1945 and name given by Porter in 1953. इसको सबसे पहले फाइंड आउट किसने किया था? पॉर्टर और थॉमसन ने, और इसको जो नेम है वो दिया था पॉर्टर ने 1953 के अंदर इसको दिया गया था. अब ये है क्या, तो इसको थोड़ा सा आप समझना. दैट इज आवर न्यूक्लियस. किसी भी सेल का न्यूक्लियस है. ओके, उस न्यूक्लियस के पास में मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क मिलता है, या अगर अपन पूरी सेल की बात करें तो ऐसे नेटवर्क और भी कई जगह पे मिलते हैं. तो ये जो लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फाइन ट्यूब्स, दैट इज लार्ज नेटवर्क of fine tubes बोल सकते हैं या fine tubules and tubes and sheets, that is, these are the large network of fine tubes and sheets which are present between nucleus and cell membrane. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच के अंदर जो फाइन ट्यूब्स और शीट्स का जो ये नेटवर्क मिलता है, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसे क्या बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. गॉट इट? अगर इसकी शेप वाइज अपन बात करें तो it is tubes also, sheets also, and they also round structures. So we can say that it look like long tubules or round or elongated bags. Got it? कौन सी? long tubules, second elongated bags, and third round shaped. Got it? तो इन तीनों टाइप की ये शेप्स यहाँ पर मिलती है, जिनके लिए इसके थ्री अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. लॉन्ग ट्यूबुल्स टाइप के, राउंड टाइप के वेसिकल्स बोलते हैं, और लॉन्ग ट्यूब्स, लॉन्ग इलोंगेटेड बैग्स जिनको बोला लॉन्ग इलोंगेटेड बैग्स. तो ये थ्री टाइप के यहाँ पर इसका कंपोजिशन यहाँ पर होता है. इफ वी कंसिडर द टाइप्स, देन देयर आर टू types of endoplasmic reticulum. One is RER and second is SER. RER, that is
round, sorry, not round, rough endoplasmic reticulum, and SER, that means smooth endoplasmic reticulum. RER means rough endoplasmic reticulum and SER means smooth endoplasmic reticulum. So there are two types of endoplasmic reticulums. One is RER and second is SER. Got it? If we consider the first, then we can say that it has the presence of particles which are called ribosomes. It has the presence of particles, ribosomes, and because of the presence of these ribosomes, it is rough. राइबोसोम्स पार्टिकल की प्रेजेंस के कारण से ये रफ होती हैं, ये इस तरह से है दैट these particles, these are ribosomes. क्या बोलते हैं इनको? Ribosomes. Got it? So the presence of the ribosome, due to the presence of ribosomes, its surface becomes rough. इनकी कैसी रहती है? सरफेस रफ होती है. Got it? And they are present near the nucleus. कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये? न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होती है. Got it? SER की अपन बात करें, that are like this. They do not have any type of ribosome particles, so we can say that they have absence of ribosomes. इनमें कोई राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं. दैट्स वाई दे आर स्मूथ. इसीलिए कैसी होती हैं? स्मूथ होती हैं. गॉट इट? अंडरस्टैंड? इफ वी कंसिडर द फंक्शनिंग ऑफ, देन वन थिंग you should know that ribosomes are called फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन. इन्हें क्या बोला जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं राइबोसोम्स. दे परफॉर्म द वर्क ऑफ protein synthesis. That's why, since they are attached with the SER, so it is associated with protein synthesis. इसलिए जो राइबोसोम, जो RER जो है राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण से किसके साथ अटैच्ड है? प्रोटीन सिंथेसिस के साथ अटैच्ड होती है. while the SER is associated, that is associated with fat and lipid synthesis. ये किसके साथ अटैच है? फैट और लिपिड सिंथेसिस के साथ अटैच्ड होती है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ endoplasmic reticulum found in our cells. If we make a comparison table, then you can do it. First difference between the name, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Second, on the basis of ribosomes, ribosomes present, ribosomes absent. Third, where they are located, present near the nucleus, and that is sorry, we didn't discuss about that, that are present near the cell membrane. ये कहाँ पे पाई जाती हैं? Near cell membrane. So that are present near the cell membrane. Okay. Third difference. Fourth, they are associated with the protein synthesis. It is associated with the fat and lipid synthesis. Got it? Understand? Now let me discuss about the functioning of the RER. Functions of RER and SER, or we can say that functions of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum के क्या क्या functions होते हैं? Got it? The first function, the two functions that we discussed here, so directly we can write that. First, protein synthesis.
विच वन? RER. सेकेंड SER in fat and lipid synthesis. SER किसके साथ एसोसिएटेड है? फैट एंड लिपिड सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड होती है. गॉट इट? ये टू फंक्शंस तो यहां पर आ गए. थर्ड, अब यहां से थोड़ा सा समझना. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम serve as a channel for the transportation of materials between the cytoplasm or different parts of the body and cytoplasm and nucleus. जिस तरीके से एक चैनल होता है, जैसे अपन किसी फैक्ट्री के अंदर बात करें तो एक पर्टिकुलर चैनल होता है जिससे मटेरियल्स, जो प्रोड्यूस्ड मटेरियल्स है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर होता है. वैसे ही एक चैनल्स क्रिएट करती हैं. उस चैनल्स के थ्रू मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है. क्या होता है यहाँ पर? मटेरियल्स का यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो वी कैन से दैट दे सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये चैनल की तरह वर्कआउट करती हैं. और ध्यान रखना, पर्टिकुलरली किसके लिए बात आती है यहाँ पे? पर्टिकुलरली प्रोटीन या स्पेशली प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पर कंसिडरेशन किया जाता है. गॉट इट? बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनके बीच में. गॉट इट? फोर्थ पॉइंट, the protein and lipids which are synthesized by endoplasmic reticulum takes part in formation of cell membrane. किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? ये फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज नॉन एज, यहां पर ये जो सेल मेम्ब्रेन बनने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पर्टिकुलरली नाम दिया जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. गॉट इट? सो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है that can be asked. What do you mean by membrane biogenesis and which cell organelle is associated with it? So what do you mean by membrane biogenesis? The protein and the lipid of the endoplasmic reticulum takes part in the formation of cell membrane. This process of the making of the cell membrane is known as cell membrane biogenesis. Got it? Understand? Now next one, the fifth function of our endoplasmic reticulum. Its synthesized proteins works as hormone and enzymes. जो इस यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन सिंथेसाइज किए हैं वो आगे चलकर क्या बनाते हैं? हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाते हैं. गॉट इट? हार्मोन्स और एंजाइम्स जो हैं, जो पहले तो बनता है प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से क्वार्टरी, और फिर क्वार्टरी के अंदर मॉडिफिकेशन से हार्मोन्स एंजाइम्स बनते हैं जो कि सेल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. तो उनके फॉर्मेशन में ये रोल प्ले करता है. सिक्स्थ अपन बात करें, then endoplasmic reticulum is work as the cytoplasmic network. It work as cytoplasmic framework or network. Cytoplasmic framework और network. framework वर्ड काम लेते हैं, नेटवर्क तो अपन ले चुके हैं. It work as cytoplasmic framework which gives the support and provide surface for the biological activities. जो सेल के अंदर चलने वाले जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनको ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है
एज वेल एज, इसके अलावा ये उन सेल्स के लिए एक तरीके से उनके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सेल को जो स्ट्रेंथ है वो देने का वर्क भी करता है। गॉट इट? सेवेंथ एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन लीवर सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लीवर सेल्स की जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट परफॉर्म द वर्क ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन of drugs and poisons। जो ड्रग्स और पॉइजनस सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं या बॉडी के अंदर जो क्रिएटेड हैं, उनके डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जो उनका टॉक्सिक इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना, उसके अंदर SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या करती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? Now let us start our second, that is Golgi apparatus, or it is also called Golgi body. Third name is Golgi complex. Fourth name is dictyosome particularly called in the plant cells, and idiosome particularly in the bacterial cells. But you have to memorize only these three names: Golgi apparatus, Golgi complex, or Golgi body. It was discovered by Camillo Golgi. It was discovered by Camillo Golgi in 1898। इसको फाइंड आउट किसने किया था? कैमिलियो गोल्जी ने 1898 के अंदर फाइंड आउट किया था। गॉट इट? अगर अपन बात करें तो दैट इज ऑल्सो ए फ्रेमवर्क। ये भी क्या है? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपने बात की थी, इट इज ऑल्सो ए फ्रेमवर्क विच इज मेड अप बाय द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो कि 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनता है। इट इज ऑल्सो ए फ्रेमवर्क विच इज मेड अप बाय द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड ट्यूबुल्स। जो सबसे पहली है वो कौन सी है? दैट आर ट्यूबुल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। सेकेंड आती है वेसिकल्स, second one is vesicles, and third one are cisternae. Third ones are cisternae, CISTERNAE. Third one is cisternae. So these 3, tubules, vesicles and cisternae, these 3 type of structures combine and make the Golgi complex. Got it? If we consider the particular definition of that, then we can say that Golgi complex is a complex or is a system of membrane bound vesicle. It is a system of membrane bound vesicles. That means pouch or bag sac like structures which are अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। ओके, दीज सैक्स, ये जो स्टैक्स जो हैं, उनके जो एक तरीके से जो लेवल्स जो बन जाते हैं, उनके लिए बोला जाता है सिस्टर्न्स। क्या बोला जाता है उनके लिए? सिस्टर्न्स बोलते हैं। गॉट इट? इफ वी कंसिडर द पोजीशन, देन इट इज जनरली फाउंड नियर द न्यूक्लियस। कहां पर पाया जाता है? इट इज फाउंड नियर द न्यूक्लियस and associated or we can say that combined with एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड होता है, कंबाइंड होता है, बिकॉज इसके जो मोस्ट ऑफ वर्क हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए हैं, और डेवलपमेंट में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। Okay, if we consider the functions, then first it modified
it produced and it modify, particularly if simple language में अपन बोलें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स is associated with the storage, modification and packaging of products. That is storage, modification and packaging. जो स्टोरेज है बने हुए प्रोडक्ट्स का स्टोरेज, मॉडिफिकेशंस या उनका जो पर्टिकुलर फैट लैप लेयर लगाकर उनका पैकेजिंग करना, उसके साथ ये एसोसिएटेड होता है. सेकंड, it also associated with the proceed and dispatched the various cell organelles at the products of endoplasmic reticulum to the various cell organelles. सेकंड जो आता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोड्यूस मटेरियल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन और फैट, उनको ये प्रोसीड करता है, प्रोसेस्ड करता है और डिस्पैच करता है टू द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स. जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सेल ऑर्गेनेल्स की को ये प्रोसीड करता है और डिस्पैच करता है कौन? जीसी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उनको ये ट्रांसफर करने का वर्क करता है. गॉट इट? थर्ड अपन बात करें तो इट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. इट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में आगे अपन पढ़ेंगे, लाइसोसोम को बनाने के अंदर ये एसोसिएटेड होता है. गॉट इट? एंड इट ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स शुगर. जो कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स हैं बाय द सिंपल शुगर. जो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, इन सिंपल शुगर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट करने के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब लेट मी क्लियर यू, शुगर दैट मीन्स नॉट द स्वीट टेस्ट. शुगर का मीन्स है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट. तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है उनसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, अबाउट द more cell organelles we will discuss in next class.